अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7, 3 orders. Yesterday we discussed about the role of Arabs or the contribution of Arabs in the field of science and technology, in the field of astronomy, science, chemistry, alchemy and other important aspects of that time. Now today we are going to discuss about the art and realism, how art and realism helped in the spreading the message of humanism, spreading the message of Renaissance in the 16th century. Now today जो artists and realism में हम देखने जा रहे हैं, that is basically initially what we see that these changes जो ये तो changes हो रही थी, it was basically an individual contribution. Individual contribution से मेरा क्या मतलब है? जब आप society में change ला रहे हो, the main weapon with you was the formal education, with the setup of formal education. तो आपने formal education जो schools की establishment हुई है, like we discussed earlier about the setup of universities, University of Padua and Bologna in Italy. So यहाँ पर अब establishment हो रही है universities की. Now universities or the education was a kind of main weapon to eradicate these superstitious beliefs, to eradicate or to equip persons with modern technology, to modern education. Now this was the main weapon with the people living in the Italian cities. Now today we can see that apart from formal education, apart from the education we received at schools, there was some other factors at play which helped, we can say, which helped the reformers of that time to depict a kind of change in the society by their art. Now art plays an important role, because today also we see different artists, different painters, or we can say cartoonists also, they show a kind of, we see in the society, they depict a kind of picture of the society which normally a book would contain much more pages to write, rather they depict a simple cartoon to depict their message, to portray the message. So this is basically something which we see in the medieval Europe also, that people are now they are portraying the message, they are now giving the kind of sense to the people that now the society is reforming. Now what was the contribution, what was the change in the society? We'll be tracing out all those developments today. Now यहाँ हम कुछ चीज़ें we'll be discussing about some changes, or we can say not only formal education के ज़रिए आप change ला रहे हो society में. Now there are certain other fields at play, like अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट जाहिर करना होता है, रिसेंटली आपने देखा कि हर एक आर्टिस्ट का एक अपना तरीका होता है बात करने का, अपना तरीका होता है अपनी बात कहने का. लाइक अगर कोई राइटर अच्छा है, इफ़ देयर इज़ अ गुड राइटर, वो अच्छे अपने आर्टिस्टिक, उसकी जो ब्यूटी ऑफ राइटिंग है उसके ज़रिए से अपनी बात को रखेगा सामने. सो बिकॉज उसकी महारत है, दैट इज़ इन राइटिंग. सेम वे हम कह सकते हैं कोई आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल किसी को अच्छा हम कह सकते हैं पेंटिंग अच्छी है उसकी, वो ही इज़ अ गुड पेंटर, तो वह ऐसे पेंट करता है जैसे अगर कोई रिफॉर्मेशन दिखानी हो. रिसेंटली हम देखते हैं फ़लस्तीन में जो वहाँ पर जो अनरेस्ट स्टार्ट हुआ था फिर से, तो वहाँ पर यहाँ कश्मीर में उसके सपोर्ट में कुछ यहाँ पर आर्टिस्ट्स निकले थे. रिसेंटली जिसको फिर बुक भी किया गया था, उसने फ़लस्तीन के सपोर्ट में एक पेंटिंग बनाई थी, एक वहाँ पर एक आर्टिस्टिक मुजाहिरा किया था आर्ट का. तो दैट बेसिकली उसकी एक बेस है. उन्होंने कोई बुक वहाँ पर नहीं लिखी, उन्होंने कोई ऐसा भाषण वगैरह नहीं दिया, बट दैट इज़ बेसिकली द आर्ट थ्रू विच यू डिपिक्ट द चेंज इन द सोसाइटी. सो ऐसे ही हम देखते हैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में होता है, वहाँ अपने आर्ट के ज़रिए वो अपना जो है उसकी बात होती है वो जाहिर करता है. सो हर एक फील्ड में हम देखते हैं इंसान जो है अपनी चेंज को जाहिर करता है. नाउ हियर ऑल्सो यहाँ हम देखते हैं आर्ट और रियलिज्म को भी अब यूज़ किया जा रहा है, ताकि सोसाइटी में ये जो लोग हैं उनको जो हम देख रहे हैं रेनेसांस या ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, ये जो चेंज आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, उसका हम देखते हैं दैट वाज आल्सो डिपिक्टेड इन द आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड द बुक्स. नाउ इनके ज़रिए भी इन चीज़ों को फैलाव मिल रहा है. जैसे कभी कभी कहते हैं ना, एक पेंटिंग जो काम करती है, उस पेंटिंग ने जो काम किया, या जो कभी आर्ट
की फॉर्म में कोई स्कल्पचर या कोई और चीज जिसने काम किया हो, वो कभी कभी 1000 बुक लिखने से भी नहीं होता। यहाँ भी हम कुछ ऐसे मास्टरपीसेस देखेंगे जिन्होंने वंस फॉर एंड ऑल हम देखते हैं यूरोप में जो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को जो है जन्म दिया है और लोग लेटर पीरियड में उसको फॉलो अप करते रहे। नाउ अगर हम पहले बात करते हैं, द फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट्स शेप्ड द माइंड्स ऑफ देयर एज। नाउ द फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल में एजुकेशन हमने पढ़ा था, दैट वाज नॉट द ओनली वे जिसके जरिए से ह्यूमनिस्ट्स ने वहां के जो लोगों के माइंड है वो रिफॉर्म किए। रादर देयर वर अदर फैक्टर्स एट प्ले। नाउ व्हाट वर द फैक्टर्स, हम देखते हैं आर्ट है, आर्किटेक्चर है, बुक्स है, इनको भी हम देखते हैं, दे वंडरफुली इफेक्टिव हम देखते हैं। नाउ अगर हम आर्ट की बात करें, क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आई हैं और किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है इंसान के सोसाइटी में, हम देखते हैं कि इंसान के सोचने करने के तरीके को, दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इससे पहले, जैसे हम अगर इससे पहले की बात करें, जैसे अर्लियर अगर हम देखें वहाँ पर जो स्कल्पचर्स बनते थे या जो उस वक्त के पेंटिंग्स वगैरह बनती थी, उसमें हम देखते हैं ज़्यादा लाइफ लाइक स्टैचूज नहीं होते थे। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसके बाद हम देखते हैं ए काइंड ऑफ डिक्लाइन हम देखते हैं इन एवरी फील्ड, लाइक इन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। नाउ 16th सेंचुरी में फिर से रिवाइवल हो जाता है इन चीज़ों का। अब कुछ ऐसे हम देखते हैं लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज रखते थे स्कल्पचर में, मूर्ति वगैरह बनाने में, इसी तरह से वो एक्सपर्टीज रखते थे पेंटिंग्स में, और जो है उनके जो छोटे छोटे चीज़ होते थे पेंटिंग में, जैसे आपको अगर कोई चीज़ बनानी है उसकी इंटिक्रेसीज को भी समझना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था। तो जो ब्रॉडली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना वो इस पीरियड में स्टार्ट होता है। नाउ ये जो आप नाम सुन रहे हो, ये जो डोनाटेला है या मिचेलिंगो है, ये जो है ना, ये एक्सपर्टीज थे इनकी, जो है हम देखते हैं ये एट द सेम टाइम स्कल्पटर्स भी थे, पेंटर्स भी थे, आर्किटेक्टर्स भी थे। ये बिल्डिंग भी बनाते थे, पेंटिंग भी करते थे, स्कल्पचर्स भी तराशते थे। तो ये हम मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, ऐसे लोग थे और ये एक्सपर्टीज भी रखते थे इन चीज़ों में। जैसे अगर आपको कोई इंसान की मूर्ति बनानी है तो आप ये ऐसे ही नहीं बनाते थे, यू वुड टेक द हेल्प ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट्स जो बोन स्ट्रक्चर को समझते हैं, उनके पास आप जाओगे, उनसे सीखोगे कि इंसान की बॉडी को अगर इस पोस्चर में रखा जाए तो मसल जो है या बोन जो है उनका पोस्चर क्या रहेगा। सो ये सब चीज़ें जो है ये समझते थे, ये सीखते थे। जियोमेट्री का यहाँ पर पेंटिंग में इस्तेमाल होने लगा, जो हम आगे भी देखने वाले हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजों का जो साइंटिफिकली, जो मिथिकल हम देखते हैं ना, मिथिकल इन द सेंस, इससे पहले आप कोई भी चीज पेंट कर सकते हो जिसके पीछे कोई हम कह सकते हैं कोई रियलिस्टिक तरीका नहीं है, रियलिस्टिक कोई मैसेज नहीं है। बट इन दिस पीरियड वी सी देयर इज अ मैसेज as well as the paintings are done in a realistic manner। जो चीज दिखाई गई है वो एक रियलिस्टिक मैनर में दिखाई गई है। नाउ यहाँ हम देखते हैं जो यहाँ पर आर्टिस्ट्स थे, पहले आर्टिस्ट्स वर इंस्पायर्ड बाय द स्टडी ऑफ द वर्क्स ऑफ पास्ट में जो भी वर्क्स थे, द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द रोमन कल्चर। तो सबसे पहले अगर हम स्कल्पचर की बात करते हैं, जो बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं हमें रोमन एम्पायर में, तो ये उसी से इंस्पायर थे। जैसे आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो दैट वी आर ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय हिस्ट्री। कोई भी हम देखते हैं कोई रेवोल्यूशन आ जाता है, अगर देखोगे आज भी अगर आप देखोगे किसी जगह सोसाइटी में कोई अनरेस्ट चल रहा है, दे आर बेसिकली ट्रेसिंग देयर हिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि वी वर वंस अपॉन अ टाइम अ ग्रेट एम्पायर, अ ग्रेट काइंड ऑफ ए सोसाइटी, नाउ वी हैव बीन डिग्रेडेड टू दिस सोसाइटी। तो इस तरह से लोग जो है ना अपना डिसेंट हमेशा से ट्रेस करते हैं हिस्ट्री में। तो इसी तरह से ये भी यहाँ पर एक्साइटेड हो रहे थे, ए काइंड ऑफ यहाँ पर हम कह सकते हैं इंस्पिरेशन ले रहे थे हिस्ट्री से। जैसे वहाँ पर भी रोमन एम्पायर, अब वो रूइंस में थे, वहाँ पर जो स्कल्पचर्स थे या दूसरी चीज़ें जो थी उनको देखकर अब ये फिर से एक नया शेप देकर स्कल्पचर्स को बना रहे हैं। ना जो भी आर्टिस्ट थे वो इंपीरियल रोमन ऑर्गेनाइजेशन जो एंशिएंट में थी उसको सामने रखकर अब नए नए आर्किटेक्ट्स, अब नए नए जो है आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं वो बना रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं वो है इटालियन स्कल्पटर्स की। नाउ इटालियन स्कल्पटर्स कौन हैं? इटालियन स्कल्पटर्स आपको जो यूजुअली तराशते हैं इन आइडल्स वगैरह को, उनको, या इंसान ये जो पोस्चर्स वगैरह होते हैं उनको। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट है डोनाटेलो एंड मिचेलिंगो।
ये बहुत हम कह सकते हैं दे ब्रोक द न्यू ग्राउंड्स विद लाइफ लाइक स्टैचूज। नाउ लाइफ लाइक स्टैचूज इज बेसिकली हम देखते हैं कि एक स्टैचू है जिसमें हम कहते हैं कि एक मैसेज भी छुपी हुई है और ये हम रियलिस्टिक ज़्यादा है। नाउ अगर लाइफ लाइक स्टैचूज की एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है द पेटा। आपकी बुक पर भी पेटा दिखाया गया है। बेसिकली पेटा इज बेसिकली अगर आप बुक पर देखोगे तो वहाँ पर जो एक औरत है उसके हम देखते हैं उसके लैब पर एक आदमी है। अकॉर्डिंग टू मिचेल कोकी की ये पेटा जो है ये इनका एक स्कल्पचर है। इसके अकॉर्डिंग जीसस की क्रूसिफिकेशन के बाद उनकी माँ ने उनको अपने गोद में लिया है। दैट इज बेसिकली मैरी एंड जीसस। तो मैरी एंड जीसस को ऐसे पेंट किया, ऐसे बनाया है, वो एक हम देख सकते हैं रियलिस्टिक पिक्चर बन रही है। आप अगर इसको देखना चाहो कि बुक पर भी है, नेट पर भी सर्च कर सकते हो, द पेटा PIET है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जीसस और मैरी को दिखाया गया है, उसकी जो मदर है उसको दिखाया गया है आफ्टर द क्रूसिफिकेशन। सो दिस इज बेसिकली एक हम देखते हैं उसमें रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा। एक तो ये असल कहानी से भी मिलती है और दूसरा इसमें जो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। सेंट जॉर्ज जो है ये भी एक ग्रेट रूलर थे। इसकी भी पेंटिंग हम देखते हैं डोनाटेलो ने, पेंटिंग नहीं स्कल्प्टर बनाया है, इसकी एक मूर्ति बनाई है इटालियन स्कल्प्टर्स ने। नाउ आर्टिस्ट्स जो इसमें थे जैसे मैंने अभी बताया टुक हेल्प ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मतलब यहाँ पर ये जो मेडिकल इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, जो इस चीज़ को जानने वाले से, हमें अभी बोन स्ट्रक्चर की बात की या कोई और पोस्चर की बात होती थी तो उसको हम देखते हैं ये मेडिकल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते थे टू अंडरस्टैंड द बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्कल्प्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल जो इसमें महारत रखते थे उनकी हेल्प लेते थे। नाउ दिस वाज इन द स्कल्पचर, जो हम स्कल्पचर वगैरह देखते हैं उसके फील्ड में हम देखते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग में हम देखते हैं यहाँ पर हम इस टाइम पे रियलिस्टिक पेंटिंग्स देखते हैं। और पेंटिंग्स में अगर बात करें नॉलेज ऑफ जियोमेट्री भी ज़रूरी थी, 3 डायमेंशनल क्वालिटी भी यहाँ पर आई है जिसको हम आज 3D कहते हैं। इसी तरह से यूज़ ऑफ ऑयल फॉर रिचनेस ऑफ कलर, ऑयल का इस्तेमाल होने लगा पेंटिंग्स में, पेंटिंग को मोर फ्रूटफुल बनाने में, मोर इफेक्टिव और रियलिस्टिक बनाने में, इन 3 चीज़ों का। नाउ इट वाज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाटॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको एनाटॉमी, फिजिक्स का भी यहाँ पर ये हेल्प ले रहे थे इसमें। इसी तरह से जियोमेट्री की भी हेल्प ले रहे थे और जो है सेंस ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल जो है वो तो पहले ही किसी चीज़ को आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल बनाना, वो सब चीज़ें हम देखते हैं पेंटिंग में हेल्प ली जा रही है। नाउ इसी को इटालियन आर्ट में हम रियलिज्म इसको ये कह रहे हैं, जिसमें ये सब चीज़ें जो साइंटिफिकली हम देखते हैं पेंटिंग में, एनाटॉमी को भी देख रहे हैं, फिजिक्स को भी, जियोमेट्री को भी, हर एक चीज़ को इक्वली यहाँ पर मेजर करके बनाया जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली रियलिज्म। ये आर्ट भी है लेकिन रियलिस्टिक लग रहा है, सब कुछ ये रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसी पीरियड में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आ रही है जो हम देखते हैं बहुत यूनिक है और आज भी उनकी बहुत शोहरत है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड जो बहुत फेमस हुई है, दैट इज बेसिकली पेंटेड बाय ए फेमस पेंटर ऑफ दैट टाइम जिसका नाम था लियोनार्डो डी विंसी। जो लियोनार्डो डे विंसी है, ही इज द पर्सन हु पेंटेड मोनालिसा। तो मोनालिसा बेसिकली यहाँ पर इसी टाइम में हम देखते हैं पेंट हुई है, मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। तो ये है इन लियोनार्डो डे विंसी जो है इन्होंने बनाया है। आज बेसिकली यहाँ पर बहुत गर्मी है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन पसीना भी आ रहा है। स्टिल अब इंशाल्लाह होपफुली अब जल्दी से ओपन एयर में कुछ हो जाए। यहाँ पर भी हम भी अब थक गए हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ अगर हम लियोनार्डो डी विंसी की बात करते हैं, ये इटालियन था और इटालियन में हम देखते हैं इनका जो है इसमें ज़्यादा फोकस था इस चीज़ में कि ये पेंटिंग्स वगैरह बनाने में मशहूर थे। नाउ मोनालिसा जो है ना, अगर मोनालिसा की बात करें, आपने बहुत बार देखा होगा मोनालिसा की पिक्चर को, तो मोनालिसा इज़ बेसिकली एक इटालियन नोबल वुमन थी जिनका असल नाम जो था, इफ आई कैन रिकॉल दैट नेम वंस अगेन फॉर यू, हाँ यहाँ पर है। तो मोनालिसा जो है ना, मोनालिसा की जो पेंटिंग है आप देखते हैं 1503 में इन्होंने पेंट की है। और ये जो है इटालियन नोबल वुमन है लीसा गिरार्डिनी, इनका असल में नाम है,
ठीक है। और ये जो हम देखते हैं जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा उस वक्त भी यूनिक थी और लेटर पीरियड में ये डिपिक्ट करती थी ए चेंज, एक रेनेसेंस की एक इमेज बन गई है, ये चेंज की एक हम कह सकते हैं एक सिंबल बना है उस वक्त। तो हम देखते हैं इसका जो है बहुत ज़्यादा हम देखते हैं आज फ्रांस में रखी, पेरिस में है रखी गई है मोनालिसा की पिक्चर, और इसको हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है आज, 867 मिलियन US$ की आज जो है इसकी कीमत है। नाउ ये किसका है? ये मोनालिसा का, ये डिपिक्ट्स द चेंज इन द सोसाइटी। नाउ अगर लास्ट सपर की बात करें, लास्ट सपर जो है ये भी लियोनार्डो ने पेंट की है। लास्ट सपर में बेसिकली क्या है, ये डिपिक्ट किया गया है जीसस को, जीसस के लास्ट सपर कहते हैं मील को, जो हम खाते हैं मील को, लास्ट मील दिखाते हैं जीसस एंड हिज अपोस्टल्स, वो जीसस एंड हिज सपोर्टर्स जो थे वो एक जगह लास्ट मील बिफोर क्रूसिफिकेशन, जीसस की क्रूसिफिकेशन जिसको हम उनके जो फांसी देने से पहले उनको अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस मारने से पहले जो लास्ट उनको जो मील दिया गया था, खाने के लिए जो खाना दिया गया था, वो अपने बाकी जो उनके फॉलोवर्स थे उनके साथ खा रहे हैं, उसको वहां पर डिपिक्ट किया गया। तो दैट इज बेसिकली द लास्ट सपर, ये यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट सपर। अब लियोनार्डो डा विंची जो है ना, इसका भी अपना एक शौक था, ये भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शौक थे इसमें। एक शौक ऐसा यूनिक था जिसमें एक कहते हैं कि ये मुझे उड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये ऐसे ही नहीं कि अब उड़ने का शौक है तो बस, इन्होंने बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इस चीज़ पर सोचा, ऑब्जर्व किया बर्ड्स को, हाउ दे फ्लाई, कैन वी मेक एनी ऑब्जेक्ट, या इंसान की बॉडी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि इंसान भी उड़ सकता है। नाउ ही कम अप विद द फ्लाइंग मशीन, लेटर पीरियड में ये फ्लाइंग मशीन बनाते हैं। फिर उसको हम कह सकते हैं ये जो है लियोनार्डो डा विंची, ही वाज हैविंग दिस ग्रेट टेस्ट फॉर फ्लाइंग, तो ये फिर फ्लाइंग मशीन भी बनाते हैं उड़ने के लिए। नाउ ये हम देखते हैं पेंटिंग में, ये हम देखते हैं चेंजेस। अब ये जो बेसिकली ये जो नए नए है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं थे पहले। अब ये जो ये चेंज दिखा, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वहाँ पर हम देखते हैं दैट इज़ बेसिकली द रेनेसेंस, वहाँ पर वुमन को दिखाया गया है ए काइंड ऑफ फ्री, हम कह सकते हैं एक चेंज्ड वुमन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो मोनालिसा की पिक्चर में। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में भी हम चेंजेस देखते हैं। सबसे पहली बात आर्किटेक्चर में जो मैंने पहले भी बताई थी वो ये कि यहाँ पर भी हम देखते हैं आर्किटेक्चर में भी जो इंस्पायर हुए थे ये किससे, इंपीरियल रोमन आर्किटेक्चर, क्योंकि वहाँ पर भी जो ग्रेट हम देखते हैं पब्लिक बाथ्स जो बनाए गए थे रोमन में, एम्पी थिएटर्स, कोलोसियम्स, पैलेसेस, या जो दूसरी चीज़ें जो बनाई गई थी, उन सब को हम देख रहे हैं इस पीरियड में क्या हो रहा है, वो चीज़ उनको इंस्पायर कर रही है। इस वक्त पोप्स भी जो थे वो भी थोड़ा पॉलिटिकली उनका भी इन्फ्लुएंस आ रहा है इन पर, तो पोप्स ने इस चीज़ को पैटर्नाइज किया, इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए लोगों को कहा, और हम देखते हैं सिटी ऑफ रोम भी रिवाइव हो रही है 15th सेंचुरी से, और पोप्स एनकरेज द स्टडी ऑफ रोमन हिस्ट्री, रिवाइवल ऑफ इंपीरियल रोमन स्टाइल। नाउ पोप्स कौन बना रहे हैं, अब इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अब इन चीज़ों को बनाने में कौन पैसे ज़्यादातर दे रहे हैं, ये पोप्स हैं, वेल्दी मर्चेंट्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, ये एम्प्लॉय करते हैं, अपने साथ रखते हैं आर्किटेक्ट्स को हु आर फैमिलियर विद द क्लासिकल आर्किटेक्चर। ये जो तीन है ना, इन्होंने अब पैसे देना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द रूलर्स ऑल्सो। अब ये यहाँ पर इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए कोशिश करें, और ये आर्किटेक्ट्स को बुला रहे हैं, और उनको जो क्लासिकल आर्किटेक्चर से उनको जिनका नाता था वो उनको भी बुला रहे हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं, ताकि हम फिर से रिवाइव कर सकें जो हमारा नए सिरे से अब आर्किटेक्चर वगैरह बनाने का तरीका है वो हम कर सकें। नाउ दिस वाज बेसिकली हम देख रहे हैं कि क्लासिकल आर्किटेक्चर में। अब इम्प्रेसिवली हम देखते हैं आर्किटेक्चर में क्या क्या अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो हम देखते हैं मिशेल है, ही वाज बेसिकली एट द सेम टाइम ही वाज ए पेंटर, स्कल्पटर एंड एन आर्किटेक्ट। तीनों एक ही बंदे में, तीनों खूबियाँ एक ही में थी। तो ये किस में हम देख रहे हैं, जो हमने यहाँ भी देखा, इनका जो पूरा नाम है ये है मिचेलेंगिलो बोनार्टी। तो ये है, इन्होंने क्या क्या यहाँ पर इम्प्रेसिव एग्जाम्पल्स क्या क्या बनाई है। इन्होंने यहाँ पर सीलिंग पेंट की है पोप के लिए, सो पेंटिंग में द पीटा जो हमने ऊपर देखा, ये भी इन्होंने डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च, डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च आप देख सकते हो, बुक पर भी है और आप नेट से भी देख सकते हो। डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च भी इन्होंने वहाँ पर एस्टैब्लिश किया है।
ने बनाया है। एट द सेम टाइम वी सी दैट फिलिप्पो ब्रुनशेल्ची, ये डिफरेंट डिफिकल्ट नाम होते हैं इनके, तो इनका है स्पेक्टेकुलर डोम ऑफ फ्लोरेंस। डोम ऑफ फ्लोरेंस भी आप देख सकते हो। ये जो नया आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं ना अब यूरोप में, अब जो ये डेवलप हो रहा है, जैसे अगर आपकी बुक आप देख सकते हो वहाँ पर दिखाया गया है ये डोम ऑफ फ्लोरेंस भी। इस आर्किटेक्चर ने फिर लेटर पीरियड में हम देखते हैं एक काइंड ऑफ हम क्या बेस बनाई है दूसरी चीज़ों को फिर बनाने में। जैसे अगर आर्किटेक्चर में चेंज आई है, जैसे कश्मीर में हमारा एक आर्किटेक्चर है, कोई नई चेंज आ जाती है सोसाइटी में, कोई ऐसा आर्किटेक्चर बन जाता है, जैसे हम यहाँ पर ये जो छत वगैरह लगाते हैं, इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, छत लगाने की भी ज़रूरत नहीं और बारिश से और बर्फ़ से भी हम बच सकते, तो हम उसको जल्दी एक्वायर करेंगे। सो यहाँ पर भी नई नई चीज़ें यहाँ पर एक्वायर और डेवलप की जा रही हैं, जो इन्होंने फिर लेटर पीरियड में कंटिन्यू की है। नाउ ये सब चीज़ें हमने देखी है स्कल्प्टर्स, पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंटिंग बुक्स। नाउ द बुक्स, अब बुक्स की जब हम बात करते हैं तो बुक्स से पहले अगर किसी को लाइक पेंटिंग देखनी हो, बिल्डिंग देखनी हो, स्कल्पचर्स देखने हो, या जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी यहाँ पर लोगों की थी वो देखनी हो, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम कि लोग जो है उस चीज़ को देखें वाइल बीइंग एट द होम। जैसे आज हमें बहुत सारी सहूलियत हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज़, वी कैन सर्च एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना, हम कुछ भी देख सकते हैं जहाँ भी कुछ हो रहा है, ये एक्सेस हमें दी गई है ना। उस वक्त अगर किसी को ये चीज़ें देखनी हो, ही और शी हैज़ टू विजिट दैट प्लेस, वहाँ पर उनको जाना था और वहाँ खुद उन चीज़ों को देखना था। नाउ व्हेन इट कम्स टू बुक्स, तो ये तो वहाँ पर बाहर नहीं जा सकते थे, ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था, ये जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस था, ये तो बाहर उनको इंस्पायर नहीं कर सकता था। लेकिन जब बुक्स की बात करते हैं, बुक्स में भी पहले क्या होता था, बुक्स में ये होता था कि अगर आप इससे पहले अगर आपको बुक की ज़रूरत होती थी तो यूजुअली आप क्या करते थे, आप दूसरी बुक ले जाने के लिए उसको राइट डाउन करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुरान को अपने पास ले जाना है एंशिएंट में, तो आप कुरान को लिख लेते थे, जैसे हमने डिस्कस किया, पपायरस है, पार्चमेंट है, वेलम है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिन पर ये लिखा जाता था। लेकिन ये चीज़ थी कि आपको हैंड मैन्युस्क्रिप्ट बनानी थी उस चीज़ की, तो इट वुड टेक मच टाइम, और ये जो है इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड करनी थी, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट उस वक्त के बुक्स का जो है बाकी लोग वाइडली उसको इस्तेमाल कर सकें। नाउ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। 16th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। 16th सेंचुरी में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग केम टू शोर, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पर आती है। सेम वे में हम देखते हैं जिस तरह से चाइना ने हेल्प की थी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन द मेकिंग ऑफ पेपर, यहाँ पर भी यूरोपियंस इंडेबिटेड हैं चाइना के लोगों का कि उन्होंने सबसे पहले पेपर की प्रिंटिंग की डेवलपमेंट की है। नाउ प्रिंटिंग की जो डेवलपमेंट है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग ये चाइना से आई है। जैसे पेपर चाइना से आई, ये प्रिंटिंग भी चाइना से आई है। अब किसने वहाँ पर इसको डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है और कौन थे वो, कहाँ किया, दैट इज़ नॉट वेल नोन हमारे पास, क्योंकि हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है उस टाइम, जो है वो एक बुक है बुद्धिज़्म की, डायमंड सूत्र 868, इसका एक हमें मिले हैं, कुछ औराक मिले हैं, कुछ पेपर्स मिले हैं जो प्रिंटेड थे। तो ये सबसे पुराना पेपर है जो डायमंड सूत्र का मिला है 868 में, जो प्रिंटेड पेपर सबसे पुराना है। तो इस बेस पर चाइना का ही ये कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स का ये पहले हम देखते। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया, और प्रिंटिंग में हम देखते हैं इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की। नाउ इनिशियली वी विटनेस दैट इफ अ पर्सन would take around 1 day to or 1 or 2 days to write a book. Now उसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं it would only take few hours to print all we can say 100, 200 and 300 books in just a short span of time. जैसे हम देखते भी हैं, जैसे सबसे पहली हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजी हम प्रिंटिंग में देखते हैं, बाइबल वाज प्रिंटेड। सबसे पहली बुक जो प्रिंट की गई है यूरोप में, दैट इज बाइबल। 1455 में हम देखते हैं ये जो वर्कशॉप था जोहानस गुटेनबर्ग का, वहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने सबसे पहले 150 कॉपीज ऑफ बाइबल जो है वो प्रिंट की है। तो जितने में ये प्रिंट हुई है उतने टाइम में सिर्फ एक बाइबल को
लिखा जा सकता था जितनी टाइम में इन्होंने बाइबल के 150 कॉपीज़ बनाई। नाउ इस वजह से हम देखते हैं ये जो चेंज आई है प्रिंटिंग की वजह से, इस प्रिंटिंग की वजह से नाउ द पेपर वाज अवेलेबल, नाउ यू कैन राइट or you can transmit the knowledge to every part of the world. Now it was possible for the readers, हम कह सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको टेस्ट था, they could buy those books, वो अपने साथ ले जा सकते, और जो है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज हो जाता। जो दूसरे रीजन्स हैं, जो बार फ्लंग एरियाज में रहते थे उस वक्त के यूरोप के दूसरे रीजन्स में, वहाँ पर यूजुअली ये बातें पहुँच जाती थी। और ये सब चीज़ें जो है इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। तो जोहानस गुटेनबर्ग में हम देखते हैं अब लोग इसको खरीद भी सकते हैं। और जो उस वक्त स्टूडेंट्स है, इससे पहले क्या तरीका था, लोग जो है स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर नोट्स पर ही ज़्यादा डिपेंड करते थे। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और वो लिखते हैं। नाउ देयर वाज नॉट ए सोर्स एज सच सोर्स जो स्टूडेंट अपने पास रखे उसको पढ़े अपने साथ, तो ज़्यादातर उसी पर रिलाई होता था। नाउ इट वाज पॉसिबल फॉर स्टूडेंट ऑल्सो टू गो फॉर सोर्सेज, टू गो फॉर अदर बुक्स टू रीड। तो इस तरह से हम देखते हैं इन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई है। तो इसी वजह से हम देखते हैं हैबिट ऑफ रीडिंग जो हम लोगों में पैदा हुआ है वो भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ है। हैबिट ऑफ रीडिंग भी इसी में हम देखते हैं स्टार्ट हुआ है। नाउ दिस वाज बेसिकली अबाउट द 3-4 एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड रियलिज्म, जिसमें हमने ये सब चीज़ें आज डिस्कस की है ना। हाँ, वन मोर थिंग, दिस एक्सप्लेन्स द वाई अर्लियर मोमेंट्स। तो ये एक और चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पर करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अर्लियर अगर कोई मोमेंट आई है, जैसे इंटेलेक्चुअल कोई मोमेंट आई है, वो क्यों एक ही जगह पर रही है, वो क्यों एक ही जगह पर सिमट के रही। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज अ काइंड ऑफ चेंज इन यूरोप इन द 2nd century AD, ठीक है, 2nd century AD में आप अगर देखोगे रोम जो है इंपीरियल रोम, उसमें इतनी डेवलपमेंट्स, पब्लिक बाथ्स और दूसरे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की बात करें या दूसरे रीजन्स की बात करें, वहाँ पर उस टाइम उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई थी। नाउ इट्स बिकॉज कि वहाँ पर जो है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेटर पीरियड्स में उससे ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। अब नॉलेज जो बुक्स की थी ये लेटर पीरियड में एक्सपेंशन हो गई नॉलेज। इस पीरियड में नॉलेज जो थे ये सिमिटेड थी, ये सिर्फ एक जगह पर रखी गई थी, दैट इट मेक इट इम्पॉसिबल टू स्प्रेड नॉलेज इन द इनिशियल टाइम्स। दैट्स व्हाई वी सी द इनिशियली जो भी मोमेंट्स उठी हैं, जो भी चेंजेस आई है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुई हैं एंशिएंट में, तो वो ज़्यादा उनका फैलाव नहीं मिला है। So this is basically one of the reason for the expansion of the moments limited to the particular area. Now in our next lecture we will be discussing a new concept of human beings and the aspiration of woman. Now we will discuss this in next lecture. If you guys have any question, any query regarding this lecture, I hope पहले तो ये पता I was feeling low today, that's why उतना इसमें एनर्जी नहीं थी। स्टिल जितना भी मुझसे हो पाया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।